नमस्कार। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी आई है जो कि ना सिर्फ कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की दास्तां बयान करती है, बल्कि उस समय चल रहे राजनीतिक, सामाजिक और मजहबी पहलुओं को भी साफ साफ दिखाती है। ये दिखाती है कि जब कश्मीर में अत्याचार हो रहा था उस समय हमारे देश की और उस प्रदेश की राजनीतिक मजबूरियाँ क्या थी। जब हिंदुओं पे जुल्म और इंतहा की सारी हदें पार की जा रही थी, तब हमारे देश के मीडिया और देश का सारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कैसे अपने मुंह में दही जमाकर बैठ गया था। जब कश्मीर में हुए हिंदुओं पर अत्याचार की त्रासदी की घटनाएं सामने आती हैं तो उसमें दो प्रमुख व्यक्ति हैं, व्यक्ति तो नहीं कह सकते, दो नरभक्षी हैं जिनके नाम बार बार आते हैं। उसमें से एक है फारूक अहमद डार, जिसको बिट्टा कराते कहते हैं। उसका एक इंटरव्यू है जिसमें वो सरेआम पूरी बेशर्मी और ढीठता से कहता है कि मैंने 20 से ज़्यादा हिंदुओं को मार डाला। और एक और नाम आता है यासिन मलिक का, तब का JKLF का यह एक नेता हुआ करता था जिसने भी हिंदुओं पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी। चाहे टीकालाल टपलू की हत्या हो या जस्टिस नीलकंठ की हत्या कर दी गई हो या फिर सरला भट्ट के साथ हुए सामूहिक दुराचार की घटना हो या गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उनकी बॉडी को आरी से, जिस आरी से आप कल्पना कीजिए कि अभी उसमें जान बची है और जिस आरी से लकड़ी चीरते हैं उसी तरह से उस महिला के बदन को बीच से 2 भागों में चीर दिया गया। इस तरह के जुल्म की इंतहा करने वाले यही लोग थे, जिसमें 2 लोग प्रमुख हैं। एक है ये फारूक अहमद डार जिसको बिट्टा कराते कहते हैं और दूसरा है यासिन मलिक। यासिन मलिक का एक पुराना इंटरव्यू है जिसमें वो 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर, एयरफोर्स के ऑफिसर थे जो बस स्टेशन पे वेट कर रहे थे अपनी बस आने का, उन पे किए गए हमले को कबूल करता है, जिसमें 2 महिलाएं और भी मारी गई थी। पूरी बेशर्मी से, पूरी ढिठाई से वो इस बात को मानता है कि ये सारी हत्याएं उसके संगठन ने की है, उसके ऑर्डर पे हुआ है। आज आपको उसका यह इंटरव्यू सुनना चाहिए। When you were in charge, or one of the leaders in charge of the Jammu and Kashmir Liberation Front, how many killings did you personally order or carry out? It is fact that Jammu Kashmir Liberation Front started armed struggle in Kashmir in 1988. I'm really asking you if you remember how many killings you personally ordered or carried out. Yes, JKLF started the armed struggle in Kashmir in 1988. But you personally? Yes, I am the pioneer of armed struggle in Kashmir, and the concept of the armed struggle was... I understand those were your motives. How many did you kill? It is not the matter how many will kill. No, this is the question I'm asking you. It is the matter. The matter is simple that there are cases against me pending in the court, and now 11 years have passed, and Government of India has not even started the trial. So, are you going to tell me whether you carried out killings or not? Definitely I participate in the armed struggle. There is no doubt about it. I'm asking you whether you accept responsibility. It is not a matter why we will accept the responsibility. The matter is very simple that Government of India never gave any kind of political space in Kashmir for non-violent movement. Carried the killings out. Yes, definitely I participate in the armed struggle. So you have to accept responsibility. Which kind of responsibility? The Air Force personnel, for instance, in January 1990, there was the killing of 4 gunned down while waiting at a bus stop with their families on the outskirts of Srinagar. You are accused by the Indians of being involved in that. Why do you laugh about that? There's nothing to laugh at about the death of people. It is not the matter that I am laughing about the death of the people. The matter is that as far as this Indian Air Force incident is concerned, they belong to the Indian security forces. If you're not justifying, well, there were 2 civilian people who were killed. There were 2 family members, 2 women who died later in hospitals. But if you're not justifying it, are you now apologizing for it? Why I will apologize?
Well, you said you're not justifying. Why I will apologize? 2 women died. We have not killed any woman. 4 Air Force personnel and 2 women died. We have not killed any woman. This case is pending in the court. Why government of India is not starting the trial? The Kashmir Liberation Front has already claimed responsibility. Kashmir, Jammu Kashmir. Kidnapping of the daughter of the then Home Minister Rubaiyat Saeed in '89, which you have already said that you were responsible for, the kidnapping. There was one of our leaders, his name was Hamid Sheikh. He is no more right now. Do you know his mother was arrested by Indian security forces and she was detained in police lockup for 20 days. Does that justify your kidnapping? Your organization put out a message when she was kidnapped saying, release the militants. There were 5 people who you wanted released. Release the militants by 1900 on December the 10th, 1989, or Rubaiyat's body will be dumped in Srinagar city. Rubaiyat Saeed knows which kind of treatment we gave her, and she tells it herself. Were you prepared to kill her? We were not prepared to kill No? her. She knows very well we never were prepared to kill her. You never killed the judge who tried and passed a death sentence on the JKLF leader, Maqbool Butt? Yeah, You did? I did not did it, but it is fact that JKLF boys killed their judge. But what was the crime of Mohammed Maqbool Butt? Our own judges in Kashmir judiciary is not functioning properly. It is under the influence of executives, and the judge gave a politically motivated judgment against a great leader. So he was deserving such kind of a treatment in reciprocate. But India is not going anywhere, is it? It's not going to leave. India will have to go. So they will come in. India will have to resolve this dispute in accordance with the wishes of the people of Jammu and Kashmir. By negotiation. By negotiation, if they are ready Which to. is the only way. Yeah, negotiation is the only way. पूरे ढिठाई और पूरे बेशर्मी से पूरे इंटरव्यू के दौरान वह अपने द्वारा किए गए इन किलिंग्स को, इन अत्याचारों को जस्टिफाई करता है और ये कहता है कि हम तो आम स्ट्रगल कर रहे थे, आम लोगों को मार के, आम निहत्थे लोगों को मार के तुम कौन सा आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे थे? हैं? सरला भट्ट को उसका साथी फ़ोन करता है कि तुम्हारी सैलरी तुम्हें ले लेना चाहिए, अब माहौल ठीक है, और वही साथी जब वो आती है तो उसे किडनैप करता है JKLF के टेररिस्ट के साथ मिलके। बाद में उसका सामूहिक बलात्कार कर उसको हत्या कर दी जाती है, उसकी लाश को लावारिसों की तरफ फेंक दिया जाता है। गिरिजा टिक्कू के साथ सामूहिक अत्याचार किए जाते हैं और उसके बाद उसको आरा मशीन में उसके जीवित अवस्था में उसके बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसकी नृशंस मृत्यु हो जाती है। ये था तुम्हारा आर्म्ड स्ट्रगल। किसी निहत्थे को मार के, किसी कमज़ोर पर अत्याचार करके आप जो दहशत का वातावरण बनाते हैं और उसका नाम देते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। अब सोचने वाली बात है कि ये फारूक अहमद डार है या यासिन मलिक है, इनकी कोई इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग है नहीं। आप इनके इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इनके द्वारा जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो किसी और ने सेट किया है। उसके लिए ये 2-3 तस्वीरें हैं, आप ये देखिए। ये पहली तस्वीर है जिसमें उसके साथ नज़र आती हैं, ये हैं निवेदिता मेनन। कहने की बात नहीं है, इसका दोहरा चरित्र पूरे भारत के सामने है। इसके मन में जितना विष भरा हुआ है भारत के लिए वो हमेशा ये उगलते रहती है। कहने के तो ये JNU की प्रोफेसर है और भारत सरकार की नौकरी कर रही है, परंतु इसके जो जहरीले विचार हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं, पूरे भारत के सामने हैं। ये इस तरह के लोग हैं जो कि हर एक आतंकवादी में एक भगत सिंह ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह से एक फल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करते हैं कि भगत सिंह भी तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और ये भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। यही नहीं, अनेक टीवी एंकर्स इसके इंटरव्यू लेते हैं। आपकी अदालत जैसा बड़ा प्रोग्राम रजत शर्मा का है, उसमें आके ये साक्षात्कार देता है। 2008 में इंडिया टुडे कन्क्लेव में ये भाषण देता है। टीवी चैनल्स इसके लाइफस्टाइल को दिखाते हैं कि देखिए यासिन मलिक अपनी पत्नी के साथ कितना सॉफ्टली बिहेव करता है, अपने बच्चों को कितना प्यार करता है।
इस तरह का आतंकवादी जिसकी तस्वीरें हाफिज सईद के साथ हों, उसके लिए भी ये एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये आतंकवादी है, ये हत्यारा है, ये एक नरपिशाच है जिसने सैकड़ों मासूम लोगों पर अत्याचार किए हैं, उनकी हत्याएं की हैं। और इसका स्थान किसी टीवी का स्टूडियो या फिर किसी कॉन्क्लेव का मंच हो नहीं सकता। इसका स्थान ये है जहाँ पे आज ये पहुँचा हुआ है। वामपंथी और इस दलाल मीडिया का नैरेटिव की ताकत इतनी है कि यह व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पद पे विराजमान प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है और वो इसको एक स्टेक होल्डर मानते हैं कश्मीर के पीस प्रोसेस में। ये पीस प्रोसेस का स्टेक होल्डर है जिसने दर्जनों लोगों की हत्याएं की हैं, दर्जनों निरपराध लोगों की हत्याएं की हैं, जो ओपनली क्लेम करता है कि भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 लोगों को इसने मारा है। इसके ऑर्डर पे कई प्रबुद्ध और बड़े लोगों की हत्याएं की गई हैं और इन सब कृत्यों के कारण हजारों लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। ये जाके प्रधानमंत्री से मिलता है और इसका नैरेटिव सेट करते हैं इस तरह के दलाल पत्रकार, इस तरह के घटिया और नीच प्रोफेसर। जाहिर सी बात है, कश्मीर में हुए कत्लेआम का जो रक्त है वो सिर्फ इन 2 नरपिशाचों के हाथ पे नहीं है। वो रक्त का एक भाग इन पूरे के पूरे दलाल मीडिया, नेता और निवेदिता मेनन जैसे प्रोफेसरों के मुंह पे भी मला हुआ है। ये नरभक्षी पिशाच ऐसे हैं जो इंसानों का रक्त पीते हैं, उनके मांस के लोथड़े नोच के खाने वाले ये लोग हैं। बड़ी बिंदी और मोटा फ्रेम का चश्मा पहन के ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताते हैं वास्तव में ये वही जिहादी जो बंदूक लेके कश्मीर में लोगों को मारते हैं और कलम लेके ये यहाँ पे लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।